आज की वीडियो की हमारी स्पेशल गेस्ट है आंचल वर्मा। ये मेरी पहली ऐसी गेस्ट है जिनका डिमांड मेरे कमेंट सेक्शन में आया था। AKA Angel Creates. I used to watch Aman Agarwal's videos. Me and my brother we used to draw these things and MS Paint हो गया वहाँ पे भी I used to draw a lot of things because ऐसा था कि okay like can someone pay for it like this was a doubt. Apart from these mainstream careers जो भी होता है डॉक्टर like CA वगैरह वगैरह तो यहाँ पे there is a very defined path. Okay तुम्हें ये करना है ये steps है ये कर दो तुम्हारा हो जाएगा. अगर सपोर्ट और मोटिवेशन सोर्स की बारे में बात करें, I just wanted to earn good so that I can support my family. तो कभी पूरी जर्नी में आपको कभी ऐसा लगा कि यार नहीं छोड़ो, फ्रीलांसिंग छोड़ दो, जॉब की तरफ ही चलते हैं? हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की वीडियो की हमारी स्पेशल गेस्ट है आंचल वर्मा, जिनको आप आंचल क्रिएट्स के नाम से भी जानते होंगे। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीजें बता दूं कि ये मेरी पहली ऐसी गेस्ट है जिनका डिमांड मेरे कमेंट सेक्शन में आया था और मैं इतना लकी इनफ हूं कि मैंने इन्हें इनवाइट किया। और दूसरी, इन्होंने जोश टॉक्स पे भी अपनी जर्नी शेयर करी है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम आंचल, कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे लिए आए। तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप हमारी ऑडियंस को दे दें। Firstly, thank you so much, Utkarsh, for having me. And hello, everyone. My name is Anchal, aka Anchal Creates. Most of the people know me by this name only because मेरे जितने भी social media पे जहाँ भी मेरे username है, like they are by this name only, Anchal Creates. And I am a thumbnail designer. I'm from Rajasthan. I recently completed my graduation from Hindu College, University of Delhi. And yeah, I've been working in this field from the past 3 years. So yeah, that's it. ओके, सो अगर डिजाइनिंग ही डोमेन की बात करें तो ये डिजाइनिंग का आइडिया आपके मन में कैसे आया? लाइक डीयू के कॉलेज में जाके कुछ ऐसा सिचुएशन या ऐसा कुछ? Yeah. So thing was, like when I completed my class 12th, it was lockdown. Okay, start ही हुआ था lockdown. And I like in my class 12th, I used to watch Aman Agarwal's video if you guys know him. So like he used to create a lot of videos related to exams and everything. कि ठीक है कैसे exams वगैरह करें ये सब. So yeah, I did subscribe to him and I used to watch his videos related to these topics. So what happened when my class 12th was done? He created one series related to freelancing. So there were a lot of like videos there, जो कि like I think blogging was there, video editing, graphic design. तो ये बहुत सारे skills were there. So I watched all the videos and out of them, I think graphic design was something जिसने मुझे बहुत interesting लगा. Why? Because I was good in like normal drawings and all. तो मेरा उसमें interest था कहीं ना कहीं. And another thing was, you know, like जो हमारे simple phones होते हैं उनमें there is this sketch वाली चीज, you know, where we can like draw something. So me and my brother we used to draw these things and MS Paint हो गया वहाँ पे भी I used to draw a lot of things. तो मुझे कहीं ना कहीं पता ना okay this is interesting, but at that time I didn't took it like very seriously because ऐसा था कि okay like can someone pay for it, like this was a doubt. But still I just like as college was there and as Aman Agarwal has said this multiple times कि यार ठीक है just explore a lot in your college. So I just wanted to explore and I just started learning about this thing. So yeah, this is how I came to know about design. ओके, फ्रीलांसिंग की जर्नी मैंने भी उसी प्लेलिस्ट से स्टार्ट करी है, क्योंकि वो 6 वीडियोस का प्लेलिस्ट Yeah, था। I think एंड अमन दत्तरवाल का मतलब काफी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था, और काफी नया था उस टाइम पे। मतलब आई गेस उस right. उस टाइम पे ऐसा कुछ कोई डाल नहीं रहा था फ्रीलांसिंग के बाद से। वही आई थिंक अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एज वेल जिन भी लाइक लोगों को मैं जानती हूँ मेरे नेटवर्क में जितने भी है, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम दोस वीडियोस ओनली. तो या राइट, अमन दत्तरवाल लाइक हैज अ लॉट ऑफ like he deserved that credit. Yeah, he like impacted a lot of like college students at that time. राइट, राइट। तो अगर हम बात करें, जब भी आप कुछ नया स्किल सीख रहे होते हैं या कोई नई जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, राइट? हम्म. तो उस टाइम पे आपको क्या चैलेंजेस आए स्टार्टिंग में जर्नी में, प्लस अभी भी अगर आप वर्क करते हो तो अब चैलेंजेस तो अभी भी आते होंगे, राइट? हम्म. Yeah, so thing is like when I started my journey, let me just talk about my journey only because of course there are a lot of challenges. But if I just talk about myself, like what are the challenges that I faced at that time, I think the number one thing was when I started the journey in like 2020 2021 there were not a lot of videos on these topics, ki how to get started as a freelancer or how to get started in design and all.
So I clearly remember at that time when I was like when I started learning more about design after watching the series, the number one problem was there were not a lot of videos. So the videos that I was watching, उनमें ये था कि okay, the number one tool that you require is Photoshop. But I didn't know, I didn't have a good laptop at that time, so Photoshop was not a good option because उसमें तो वो चलता ही नहीं. That was number one thing. And फिर मैंने देखा कि okay, मुझे एक साल बाद पता चला कि okay, there are tools like Canva and Figma as well, जो कि I got to know from my college. So like I attended a workshop जहाँ पे Canva सिखाया जाता है, and then I got to know okay, you can like do these things in Canva as well. But it took me 1 year to like learn about that, right? So if there would have been a lot of videos, so वो easy हो जाता. तो आई थिंक वो एक नंबर वन चीज है कि लाइक देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एट दैट टाइम, बट नाउ ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस. बट उस टाइम में ये नंबर वन चैलेंज था कि आई डिडंट नो कि ओके हाउ टू गेट स्टार्टेड विद इट, एंड लैपटॉप भी नहीं था, तो वो भी एक चैलेंज था. अनदर थिंग इज लाइक यू नो अपार्ट फ्रॉम दीज मेन स्ट्रीम करियर जो भी होता है, डॉक्टर लाइक सीए वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे देर इज अ वेरी डिफाइंड पाथ. ओके तुम्हें ये करना है, ये स्टेप्स है, ये कर लो तुम्हारा हो जाएगा. But when it comes to like these career options, I think you don't have a lot of like guides, or I would say like there is not a clear path towards these things. So you have to figure out by your own. तो जब मैंने स्टार्ट किया मुझे भी नहीं पता कि क्या चीज कैसे करनी चाहिए, कैसे कम्युनिकेशन होना चाहिए, या फिर कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे अपनी सर्विसेज पिच करनी चाहिए, ये सब चीजें. तो या लाइक of course these things are changing now कि अभी बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं, या you can read a lot of blogs, ट्विटर पे बहुत सारे लोग हैं, there are a lot of reels created on these topics. But yeah, this is a problem, like you don't really know what to do, right? So there is not a defined path. Okay, ये करोगे तो तुम successful हो जाओगे. Something that is working for one person may not be work for like might not work for the other person. So yeah, these are the main 2 or 3 challenges that I faced at that time. Now if I talk about now, I think the number one thing is time management, I would say. Ki, you know, when you are at this position, you have a lot of opportunities, but now deciding okay ye wali cheez I want to do and let's just say no to it, it is very hard to just differentiate or just choose one. Okay, so there are a lot of things, but like you will have to choose one, and deciding that is very hard. Second thing is there are a lot of resources right now, so if someone is starting his or her journey right now, as there are a lot of things available, like you just get frustrated or you are just clueless कि यार कैसे start करूँ, इतनी सारी चीजें क्या चीज करूँ, right? So I think there are a lot of options right now. So I think yeah, these two are the challenges that I think I'm facing right now, but to choose and like where to like get that best thing possible कि ये चीज सीखे. So yeah, there are a lot of options. So I think these are the challenges that I'm facing right now. Okay, so we just talked about your challenges. अगर सपोर्ट और मोटिवेशन सोर्स की बारे में बात करें कि फैमिली का सपोर्ट कैसा था, फ्रेंड्स का कैसा था, Mm-hmm. तो होता है ना कि उनके Okay. उनके लिए हो सके चीजें नहीं हो, उनको इनकी नॉलेज ना हो, Mm-hmm. राइट? तो उनका कैसा था कि Mm-hmm. सपोर्टिव थे या डांटते थे कि मत करो ये सब, पढ़ाई में फोकस करो? Mm-hmm. So I think the best thing was that I started in my college. So when you are like starting so young, तो आपके ऊपर like there is not a lot of pressure कि यार ठीक है आपको अभी के अभी like you will have to make it, or you know मतलब तुम्हें करना ही होगा या तुम्हें successful बनना ही होगा. So I think those 3 years helped me because मेरे like of course there was responsibility because I just wanted to earn good so that I can support my family. Like I don't come from a like very good background, so that was the case. But still I had good time. Okay कि अगर if I want to prepare for a government job as well, तो वो होगा तो graduation के बाद ही. So I had these 3 years to explore, to learn okay like what are the things that I am good at or what are things that I enjoy. So yeah, that was the one thing that I like didn't have a lot of pressure. One thing. Second thing is I think my like I owe a lot to my mother and my brother. So I think these 2 people supported me a lot. चाहे वो बहुत सारी चीजों में हो सकता है. So when I was working और जब मैं मेरा खुद का काम कर रही थी, so they were not like यार ठीक है आंचल don't worry, हम मतलब ऐसा नहीं है कि यार पैसों का कोई प्रेशर है. So for example मेरे पास लैपटॉप नहीं था, आई टोल्ड यू. तो जब मैंने स्टार्ट किया उस टाइम आई क्लियरली रिमेम्बर मैंने एक अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई किया, एंड बहुत अच्छा स्टार्टअप था, and there were around 200 applicants and I was the only one जो select हुआ उसमें. So of course वो बहुत बड़ी opportunity थी मेरे लिए. But you know when जब हमारी call हुई and सब कुछ decide हुआ, the only reason जिसकी वजह से मैं
उनका मतलब I was not able to like get selected there at that company was कि मेरे पास एक अच्छा लैपटॉप नहीं था. They required someone जिसे फोटोशॉप आता हो, but मेरे पास फोटोशॉप वाला लैपटॉप नहीं था. So I just lost that opportunity for this one thing. But then मैं बहुत ज़्यादा sad थी, and my mother noticed that, and she decided, okay, like we will like get a good laptop. So she, of course, of course, financial conditions were not though like that great, but still she decided, okay, Anjal को मतलब like we will buy a good laptop. And yeah, that is how I got my dream laptop as well. And of course मतलब वो ऐसा नहीं था कि हमने पैसे देके लिया, that was on EMI. But still she did that, she had the trust on me कि यार ठीक है, let just support her. So she did that. And ऐसे बहुत सारे instances है, like whether it is about me working and other stuff जो घर पे normal work होता है, she was the one who was doing that, and मैं अपने काम में focus थी, right? So yeah, she always trusted me. अभी भी like this field is not very like बहुत एकदम सिक्योर होती है, बट स्टिल शी ऑलवेज सपोर्ट्स मी कि यार ठीक है, इफ आई एम लाइकिंग इट तो ठीक है, लाइक जस्ट डू इट. एंड शी ऑलवेज ट्रस्टेड मी. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स इस टाइम में ये होता है लाइक दे यूजुअली डोंट ट्रस्ट. यार ठीक है, अगर मुझे कुछ कोर्स लेना है, एट दैट टाइम एज वेल आई बॉट अ वेरी लाइक एक्सपेंसिव कोर्स, but still she trusted me and paid for that course. And again this laptop thing, so yeah, she supported me a lot. So that support was always there. And but there was this condition कि till college I can do this, कि वही टिपिकल अमन अग्रवाल वाली स्टोरी वाज देयर कि यार ठीक है, कॉलेज तक हमारे पास टाइम है, बट देन उनका ही वो होगा कि इफ आई वांट लाइक जो हमारी मर्जी होगी वही तुम्हें करना होगा. सो आई हैड दैट डेडलाइन, ठीक है, कॉलेज तक कुछ ना कुछ तो करना होगा. एंड थैंकफुली आई वाज एबल टू डू इट कि कॉलेज तक आई वाज. सी द थिंग वाज कि अगर लाइक ये 3 साल हुए, लास्ट 3 years, सो यू नो व्हाट, लाइक फॉर द फर्स्ट 2 years कुछ भी नहीं था साइड कि ओके वेदर आई एम डूइंग इट राइट और नॉट. तो देयर वर अ लॉट ऑफ लाइक थिंग्स, बहुत सारा सेल्फ डाउट भी था, लाइक आई वाज नॉट अर्निंग अ लॉट एज वेल. बट द लास्ट ईयर चेंज्ड इट कंप्लीटली. सो लाइक दिस इज ऑल्सो अबाउट कंपाउंडिंग यार. मतलब इन द स्टार्ट यू विल नॉट सी एनी प्रोग्रेस, या तुम्हें सब कुछ ऐसा लगेगा यार क्या मैं सही भी कर रहा हूँ या नहीं. बट या थिंग्स स्टार्ट्स टू चेंज वंस यू स्टिक टू दीज थिंग्स, एंड आपको धीरे धीरे रिजल्ट दिखते हैं. सो दैट हैपेंड. एंड या थैंक गॉड मैंने 3rd year तक आई वॉज एबल टू क्रैक दिस थिंग. एंड या आई स्टार्टेड अर्निंग गुड मनी. सो दैट वॉज अगेन लाइक गुड थिंग फॉर पेरेंट्स एज वेल. सो दे सॉ ओके ठीक है, अभी पैसे भी कमा रहे हैं एंड एवरीथिंग इज गुड. सो या आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प. So yeah, overall my parents and like my bhai and like everyone was supportive in my family. So yeah, and talking about the motivation thing, I think till college it was the motivation only कि यार मुझे like it was very clear that I don't go want to just go for a job या फिर simple bank ये सब banking, that government job. And design was my interest, and I just wanted to make it like in this field only. So that was the motivation. But like after the college मुझे वो चीज मिली. Now the next step is of course, so now the number one reason for me is my dreams. Okay, I just want to tick them off जितना जल्दी हो सके. So that is always my motivation. I want to travel the world, so for that you need money, and for that you need a lot of things, right? So I think that is serving as motivation for me, that okay, I want to tick them off, so I need to work hard. I just need to wake up and just do my work that is required for like those dreams. So yeah, that is my biggest motivation. ओके. सो अगर फ्रेंड्स के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स का क्या मतलब रिएक्शन वगैरह था? ये होता है ना एक कॉलेज लाइफ में, जब बच्चा काम कर रहा होता है या अपने पे फोकस कर रहा होता है तो पार्टीज वगैरह को उसे इग्नोर करना पड़ता है, या कुछ वो जो होता है ना Yeah. टिपिकल टाइम वेस्ट करने वाला टाइम, वो चीज वो आपको हटाना पड़ता है. Yeah. या तो आप वही कर सकते हो या अपने काम पे. Okay. तो उसमें कैसा था आपका? Okay. So I think the thing was मेरी जैसे ही मेरा स्कूल खत्म हुआ तो इतना ज्यादा मैं कनेक्टेड नहीं थी मेरे स्कूल वाले फ्रेंड से. तो वो एक नंबर वन चीज थी कि वहां से कुछ नहीं था. सी मतलब आई जस्ट वांटेड टू वर्क हार्ड, एंड जितना जल्दी हो सके वो जिस करना. तो आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट, आई वाज जस्ट फोकस इन माय वर्क. तो मुझे वैसे भी नहीं था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था. तो दैट्स व्हाई आई जस्ट हैव लाइक वन बेस्ट फ्रेंड. उसके अलावा कोई भी नहीं है. लाइक देयर आर जस्ट लाइक ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स है, बट दे आर नॉट लाइक कि वो इन्फ्लुएंस करेंगे मेरे लाइफ में कुछ. बट या व्हेन सो मतलब मेरे कॉलेज के 3 साल थे, उनमें से 1.5 years वर इनटू लॉकडाउन ओनली. आई वाज नॉट एट कॉलेज, सो वो भी एक अच्छी चीज रही. सो आई वाज जस्ट वर्किंग एट माय होम ओनली. देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. बट जब मैं कॉलेज में एंटर हुई तो या डेफिनेटली दिस थिंग वाज देयर. आई हैड अ रूममेट, एंड हम जब भी ऐसे बात करते थे, शी यूज्ड टू गो आउटसाइड एंड शी आल्सो यूज्ड टू आस्क मी, याचन कम लेट्स गो देयर. बट मतलब
I always have my priority set. Okay, so college life for me was to just work hard. Okay, and so yeah, there was not any other option for me, so I used to just do my work only. But of course, there were a lot of things. There were these kind of things, like there were a lot of societies. उनके बहुत सारे फेस्ट होते रहे, ड्यू है तो वहाँ पे तो बहुत सारा फेस्ट वगैरह होते हैं. Like there are a lot of things, and तो but I yeah but actually see if you are in college, अगर आपके पास इतनी सारा responsibility नहीं है, I will definitely tell you to just enjoy these things as well, because after your college you are just going to work only. Okay, आपके पास इतनी ज़्यादा वो नहीं होती freedom to do these things, but since you are in college you don't have a lot of pressure. Please do this. You are going to learn a lot. मतलब going outside also helps you a lot. मतलब you learn to talk with people. आपको पता चलता है किसी से कैसे बात करनी है, या फिर कैसे खड़ा होना है, कैसे how to dress up, right? So these things helps, definitely these things help. Of course access में आप ये सब कर रहे हो, it is not going to help you, but doing these things once in a month, let's say, so that is good for you. And mainly in fest as well, you learn a lot if you are participating in them. So yeah, of course you should do these things, but my problem was that I had that responsibility to earn. So yeah, so there was not any option. So I used to just work and just ignore the things that my friends used to told me. So yeah. ओके, सो अगर आपके सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में बात करें तो आप कहाँ कहाँ पे एक्टिव हो? Mm, I think I'm active on every social media platform. So whether it is LinkedIn, Twitter, Instagram, Behance, what else? ये जो 4-5 platforms है, I'm there. And on YouTube as well, actually. Yeah, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn and Behance. So you just need to Google Anshul Creates. आपको सभी जितने भी मेरे social media platforms आपको मिल जाएंगे. So just search Anshul Creates. So yeah. And ओके, all my usernames are also by this name only, Anshul Creates. Just go and search on every social media platform and you will be able to find my profile. ओके, सो आंचल का Yeah. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे। अगर किसी को कोई डाउट आता है डिजाइनिंग से रिलेटेड तो आप जाकर उनसे पूछ सकते हो। थोड़ा पेशेंस रखना, रिप्लाई मिलेगा। Yeah, actually, yeah, this is a problem right now because अभी इतने सारा मतलब सभी social media platforms से I'm also creating content, so I get a lot of reach outs, but it is very hard to actually reply to all of them. So that is a problem. But definitely, I'm starting my YouTube channel. This I think you can expect a video in first week of March, hopefully. So yeah, I'm starting creating videos on like these topics. So भी मेरी field है उससे related thumbnail design, clients and everything. So yeah, you can expect those videos, and I think that is going to help you. So because replying to every comment is a bit hard for me, but I try my best to do that. ओके, सो आंचल, let's take an example. If you get a time machine, right, in 2024 and you have to go back to 2021, like 3 साल पहले लगभग, ठीक है, तो ऐसा कोई Hmm. रिग्रेट है? ऐसा कुछ मतलब एक होता है ना कि यार ये चीज उस समय कर ली होती तो आज थोड़ा और बेटर होते, ऐसा कोई रिग्रेट आपके मन में? That's a really nice question. Yeah, not actually 3 years, but I definitely regret this one thing. जब मैं स्कूल में थी ना, like I didn't enjoy a lot. ठीक है, college का I know that is not a regret because I know that I had to do. But in my school, I think I didn't have a lot of responsibility, and in school there is just one priority: get good marks. So in college you have a lot of other things as well. ठीक है, आपको ये भी करना है, ये भी सीखना है, internships भी है आपको, कॉलेज के लेक्चर्स ही करने हैं, ये सब. बट इन स्कूल इट्स जस्ट वन थिंग कि पढ़ना है, बस बढ़िया मार्क्स लाने हैं. सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम. बट जब मैं अपने स्कूल में थी, आई जस्ट यूज्ड टू स्टडी. बहुत बोरिंग पर्सन थी आई थिंक मैं. बट मतलब स्कूल एक बहुत अच्छी, लाइक इन स्कूल यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम यार. सो मैं अगर मुझे वो चीज सही करनी हो तो आई वुड हैव पार्टिसिपेटेड इन लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस या फिर डिबेट्स जो होती थी. आई वुड हैव इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स. I would have read a lot of books as well, because उस टाइम मुझे यही पता था. I used to read my नॉर्मल स्कूल की टेक्स्ट बुक्स ओनली. बट नाउ एज आई नो कि यार देखो बहुत सारी नॉन फिक्शन फिक्शन बुक्स भी है दैट एक्चुअली इम्प्रूव योर योर नॉलेज. सो इफ आई वुड हैव रीड दिस बुक्स मेरे स्कूल में ही, आई थिंक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता वो चीज, एंड आई वुड हैव लर्न अ लॉट. तो अभी मुझे वो चीज नहीं करनी पड़ती है, एंड दैट वुड हैव सेव माई टाइम एज वेल.
So yeah, I was very boring person in my school, and I would definitely like to like change it कि यार ठीक है थोड़ा सा पढ़ो मत सिर्फ, क्योंकि मतलब once you're out of college, your study is not going to help you at all. So the things that are going to help you is these only कि यार तुम्हें अपनी knowledge तुम्हारी अच्छी है, या your communication skills are good, the way you present yourself is good, so these things I think you should start learning in your school time only. वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है अपनी रियल लाइफ में जब आप आओगे, तो या ओके, सो बेसिकली अगर हम फ्रीलांसिंग की ही बात करें तो कभी पूरी जर्नी में आपको कभी ऐसा लगा कि यार नहीं, छोड़ो, फ्रीलांसिंग छोड़ दो, जॉब की तरफ ही चलते हैं, स्टेबल रहेंगे, सिक्योर रहेगा और स्मूथ रहेगा थोड़ा, पूरी जर्नी में कभी भी ऐसा लगा? To be honest, no, but I do get this thought a lot ki like whether I should go for a job or not. Not in terms कि यार I want this secure thing, security मिलेगी यार ठीक है हो गया, या वो चीज नहीं है. Of course, sorry, of course that thought also comes, but वो इतना regular नहीं होता. But I do want to try this thing. जैसे फॉर मतलब बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया इट वाज कॉलेज ओनली, तो अभी मैंने बस थोड़े टाइम पहले कॉलेज कंप्लीट किया. सो गोइंग फॉर अ फुल टाइम जॉब वाज नॉट एन ऑप्शन, तो आई डिड डू सम इंटर्नशिप्स, जैसे जो स्टॉक्स हो गया और वन स्टार्टअप एज वेल. तो मैंने वहां पे वर्क की है. सो वन थिंग वाज प्रीटी क्लियर कि यार द थिंग इज व्हेन यू आर वर्किंग एट जस्ट वन स्टार्टअप, द प्रॉब्लम इज आपका टाइम वहीं जा रहा है. अनलेस यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि लेट्स से एनी बिग कंपनी, ओके मैं उसके साथ उनके साथ वर्क कर रही हूँ, एंड लेट्स से आई एम लर्निंग अ लॉट कि ठीक है मैं बहुत सारे सोशल मीडिया कैंपेन्स हो सकते हैं उनमें आई एम वर्किंग, आई एम आल्सो लर्निंग टू लाइक हाउ अ प्रोडक्ट इज बिल्ड या उसका क्या बिहाइंड द सीन्स रहते हैं. सो इफ दैट इज द केस आई थिंक या आई वुड डेफिनेटली लाइक टू ट्राई इट. बट मतलब अगर आपके पास ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें सीखने के लिए है या फिर ये सब चीजें, आई थिंक फुल टाइम जॉब में ना आप लिमिटेड रहते हो, मतलब यू आर नॉट एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप 9 to 5 उससे इतना ज्यादा टाइम आप दे रहे हो सिर्फ एक जॉब को, वे यू आर ऑल्सो लर्निंग लाइक यू आर नॉट लर्निंग एज वेल. तो वो इज नॉट अ गुड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी, एंड इसलिए आई डिसाइड कि आई वांट टू गो फॉर फ्रीलांसिंग ओनली. बिकॉज स्पेशली इन माई फील्ड दैट इज थंबनेल डिजाइन, अगर आप एक ही क्रिएटर के साथ वर्क कर रहे हो, आई थिंक दैट बिकम्स मोनोटोनस. यू आर नॉट गोइंग टू लर्न. आप एक ही क्रिएटर के थंबनेल्स बनाए जा रहे हो, देयर इज नॉट अ गुड लाइक लर्निंग देयर. सो in freelancing, as my field is this, I would definitely like to work with a lot of creators, and that is possible mainly like through freelancing only. So yeah, so that was pretty clear. Okay, I want to do freelancing and I just want to work with a lot of creators, not just one. So yeah. ओके, सो बेसिकली आपको मतलब स्टक होना पसंद नहीं है, थोड़ा सा वैरायटी होनी चाहिए, थोड़ा सा मतलब Right. मोनोटोनस काम वैसे भी किसी को नहीं Right. पसंद आता है, और इसीलिए Right. बेसिकली आपका ये कंसर्न है। ओके, तो Yeah. अगर हम एक फ्रीलांसर की बारे में बात करें, तो हमारे लिए ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं कि कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब मन चाहो तब काम करो, जब मन चाहो तब काम ना करो, ऐसे करके। तो एक जो बहुत बड़ा इशू जैसे आपने मेंशन भी किया था कि टाइम मैनेजमेंट वाला, तो आप अभी टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? कोई टू डू लिस्ट है या कुछ एक स्पेसिफिक चीज या मेथड कोई फॉलो करते हो आप? वन थिंग, अगर अभी आप एक बार कॉलेज में हो, अभी आपने अपनी जर्नी स्टार्ट ही की है, एंड यू आर थिंकिंग कि यार फ्रीलांसिंग करते हैं तो अपने बॉस खुद है, वो आप सुनते ही रहते हो, तो बेस्ट है. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सी थिंग इज वो देयर इज दिस कोट, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं याद है, बट फ्रीलांसिंग इज हार्ड, जॉब इज हार्ड, जस्ट चूज योर हार्ड. तो दैट्स द थिंग. ऐसा कभी मत सोचना जस्ट डोंट एंटर इनटू फ्रीलांसिंग ऐसा सोच के कि यार इट इज गोइंग टू बी इजी. इट इज नॉट. इनफैक्ट जब आप स्टार्ट करोगे ना, इट इज गोइंग टू बी एज लाइक हार्डर देन अ जॉब. बिकॉज आपको ऐसा नहीं है कि यार देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. अभी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाई फ्रीलांसिंग इज हार्डर देन जॉब, तो वो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. बट स्टिल आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि ऐसा मत सोचना कि इट इज गोइंग टू बी इजी. यू हैव टू हैंडल मल्टीपल क्लाइंट्स. आप सबके अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं, यू आर ऑल्सो आंसरिंग टू दैम. बहुत सारी और भी चीजें होती है. यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसिंग एज वेल. इट इज नॉट कि आपकी पेसिव इनकम ही हर बार आ रही है. तो देर आर टाइम्स व्हेन कोई भी क्लाइंट एक बार चला गया, सो यू हैव दैट प्रेशर एज वेल कि ओके आई वांट टू गेट अ न्यू क्लाइंट, बट एट द सेम टाइम आई नीड टू इम्प्रूव एज वेल. मुझे सब कुछ डिजाइन भी करना है, ये सब. सो इट इज नॉट एट ऑल इजी, बट आई वुड डेफिनेटली लेट यू ट्राई दैट. मतलब एक ट्राई करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि यार ठीक है whether it is for me or not. So that's one thing. Talking about the time management thing, so uh of course there are not any fixed hours, but you can definitely set like an amount of like fixed time period जो तुम्हें उस चीज में देना है. So yeah, that is what I do normally कि मेरा मुझे एक मतलब ये चीज है कि okay there are like fixed hours कि मुझे इनमें ही वर्क करना है.
इट इज नॉट इजी एज आई एम सेइंग दिस, इतना इजी नहीं होता है, कभी कभी मुझे भी होता है कि यार आई एम जस्ट वर्किंग मोर देन दोस लाइक दैट टाइम पीरियड, सो इट इज वेरी नॉर्मल, बट स्टिल आई हैव अ टू डू लिस्ट। वन थिंग, आई ऑल्सो प्रायोरिटाइज माई टास्क। ऐसा नहीं है कि एक दिन में बस टू डू लिस्ट बना ली चलो करने लगे, नो, लाइक आई सेट देम ऑन द प्रायोरिटी बेसिस कि यार मुझे ये काम पहले करना है, ये काम बाद में, ये काम बाद में। So that's number two thing. Third thing is, I think time is also about like the kind of people you are working with. Okay, so one thing is like there are clients who are going to like suck your energy. Okay, आपको पता चल जाएगा मतलब बहुत सारे changes है, उन्हें खुद को नहीं समझ आ रहा क्या करना है, you know, तो just try to get client। and ऐसा नहीं है कि आपको ये अभी समझ आएगा, ठीक है, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आपको हर तरीके के क्लाइंट के साथ वर्क करके you will be able to decide मुझे क्या चीज नहीं करनी। तो I work with like some clients in the past and मुझे लगा यार no, this is a big no, because आई एम वर्किंग विद लेट्स से 4 क्लाइंट्स एंड एक क्लाइंट का वर्क कर रही हूँ और 3 क्लाइंट का वर्क कर रही हूँ, दैट इज इक्वल। ओके, सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपको ये एक क्लाइंट हटा दोगे ना, यू विल जस्ट रियलाइज ओके मैन, लाइक लाइफ इज सो सिंपल, राइट? तो यू जस्ट नीड टू एनालाइज दैट कि आपके लिए क्या चीज सही है, कौन से क्लाइंट के साथ आपको वर्क करना है, कौन से क्लाइंट्स आपकी ज्यादा एनर्जी ले रहे हैं। तो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड जस्ट ट्राई टू वर्क विद क्लाइंट जो कि बहुत ईजी हो जिनके साथ वर्क करना। so you will, yeah, like this is a very like important thing। okay, just be very careful कि आप किनके साथ वर्क कर रहे हो। आपका टाइम मेनली उस चीज में ज्यादा जाएगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, आप संभाल रहे हो, वो बता रहे हैं कुछ, आप बता रहे हो, एंड देन you know there is a lot of things going on, so just try to work with client जो आपका कम टाइम लेते हैं। another thing that you can do is just try to work like आप सेम काम कर रहे हो, अभी आपने देखा कि ठीक है, लेट्स से डे फर्स्ट मंथ है और एक 6 मंथ है, ओके, यू विल जस्ट रियलाइज कि यार ठीक है, अगर इस सेम काम का इफ समवन इज पेइंग मी मोर देन द वर्क दैट आई एम डूइंग फॉर दिस क्लाइंट, जस्ट ट्राई टू गेट क्लाइंट जो सेम वर्क का ज्यादा अमाउंट आपको दे रहे हैं। सो इन दैट वे यू विल बी एबल, यू विल बी अर्निंग द सेम अमाउंट, बट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू विल बी डूइंग इट विल बी लेसर। So yeah, that is another thing that you can do, but mainly it's about like setting particular like fixed hours to thing। so if I'm working, let's say from like सुबह 10 से 11 बजे और 12 बजे आई एम वर्किंग विद दिस क्लाइंट, तो वो इस क्लाइंट के लिए, देन लाइक यू कैन जस्ट लाइक क्रिएट ब्लॉक्स कि ओके ये वाला टाइम ब्लॉक इज फॉर दिस क्लाइंट, ये वाला टाइम ब्लॉक इज फॉर दिस क्लाइंट, so that also helps। so yeah, I'm not a pro at this thing because even I'm struggling with this thing, but you know मतलब just try to learn as much as you can, just try to watch some videos। so there are some hacks that are going to work for you, but there are definitely things that will not work for you। so just try to learn as much as you can from Twitter, from YouTube. There are a lot of creators sharing these kind of videos, so just watch those videos and just try to apply those things in your life। so yeah। ओके, सो अगर क्लाइंट्स की बात करें तो स्टार्टिंग फेज में आप क्लाइंट कैसे बनाते थे? मतलब डीएम हो गया, कोल्ड मेलिंग हो गई, या रेफरेंसेस हो गए, और अब क्लाइंट्स Mm-hmm. कैसे कैसे रीच आउट करते हैं आपको? So I think when I started this journey, I got my first client through a simple message only. So I was very active on Twitter, and वहाँ पे I made a lot of friends as well। तो मेरा एक ऐसा ही friend था by the name प्रणव पवार। So he has this YouTube channel, he used to design his thumbnails, but उनके इतने अच्छे नहीं थे वो। I just praised him कि यार ठीक है, let me just design your thumbnails, and it was a free job only of course। But yeah, this is how I got my first work thing। तो मैंने उन्हें simple message किया, and from that thing I just got 2-3 thumbnail design samples। तो फिर क्या किया, एज आई वॉज एक्टिव ऑन ट्विटर, मुझे कुछ अकाउंट दिखे एंड उनमें से एक अकाउंट था राहुल राय सिंघानी का। सो इज अ डिजिटल मार्केटर। सो आई जस्ट रीच आउट टू हिम कि ओके मैंने इस मेरे फ्रेंड के लिए ये थंबनेल्स बनाए हैं, एंड जस्ट चेक देम्स, एंड आई थिंक आई कैन आल्सो डिजाइन योर थंबनेल्स बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग ग्रेट राइट नाउ। So he liked those designs, and this is how I got my first ever paid client। So if I just talk about in the start, I think it was mainly through emails, जो normal cold emails होते हैं, cold DMs होते हैं, that was first thing। Second thing was through applying to job posts। ठीक है, so जितने भी job posts social media पे you see कि ठीक है मतलब आ जाते हैं ना, you know कि we are hiring a thumbnail designer, so I used to apply to those job posts। so that was my second way। Third way was कि I used to like apply to those internships at Internshala, which according to me is not a great way because like there are a lot of scams happening। so and at that time as well, like the system was not there, you know, मतलब I used to apply to a lot of jobs, वहां पे बाद में पता चलता कि it is not paid, but they have written कि यार वो paid था, right? so there are a lot of scams वहां पे। but yeah, this was my third way। वहां से मैंने
पहले अपनी इंटर्नशिप भी ली थी, बट आई वुड सजेस्ट टू नॉट यूज इंटर्नशिप अभी के लिए. So at that time I think these were 2 to 3 ways. I just used to call, email people, or just apply to job post. Because जब मैंने स्टार्ट किया था I was very underconfident, तो मैं इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे अपना वर्क पोस्ट भी नहीं करती थी. But now I just realize, okay, if you are posting your work online, you don't really know who is watching you, right? So there are chances that people will reach out to you. तो वो मैंने उस टाइम नहीं किया, but now I regret, okay, I should have done that. But now if I talk about now, number one thing is through referrals. So I work with clients, they like my work, and they just refer to like people in their connection. So that is number one way. Second is inbound leads. So I think working at Soch was a game changer thing for me, because at Soch, like for every video, they have this description, and in the description they mention their team, and for like they also like add their social media handles there. So a lot of people discovered me through those like description thing, and they used to reach out to me. So I get a lot of reach out from that way as well. Third thing is, as I'm posting, like I have my portfolio on weekends, a lot of people have seen their portfolio and they reach out to me as well via email. That's another way. Last way is, so I recently started posting my content online, so that has helped me. And people like on every social media platform, whether it is LinkedIn, Instagram, Twitter, people are reaching out to me through that as well. But yeah, the number one thing is through referrals and inbound leads, through my portfolio, through Soch and everything. And you know what, like once you start working with some good YouTube channel, like big names like Soch, Monkey Magic, Joe Stocks, people start trusting you. And once they trust you, they have no problem. Like they don't really ask for a lot of things. Interview le liya, ye sab kar liya. They are like, okay, we want to work with you directly. So that helps you if you are working with good like name, like very big brands. That builds credibility, and people do reach out to you for the work. So yeah. ओके, सो बेसिकली स्किल पे काम करते करते अगर आप एक दो बड़े नाम पे साथ एसोसिएट हो जाते हो, फिर धीमे धीमे एक ट्रस्ट बन जाता है. तो मतलब बेसिकली अगर क्या बोलते हैं, अगर कोई अभी स्टार्ट कर रहा हो, लाइक थंबनेल डिजाइनिंग की भी Hmm. पर्टिकुलरली बात करें, तो क्या एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होना चाहिए? Okay, again, like I will tell you step by step thing, but it is not very sure. Like I'm not very sure if you are going to follow that certain path only, because I watched a lot of videos कि तुम ये करो, but that never worked for me, because you just make your own path only, because everyone's journey is different. But still, if we have to give you a certain things, okay, these are the steps that you should follow. I think if you are mainly into thumbnail design, focus on learning Photoshop, because there is a lot of morphing involved. There are a lot of effects, filters, and everything. So if you know Photoshop, it is going to help you. यार मतलब I know a lot of designers मतलब Photoshop, sorry, thumbnail designers, but if like अगर मैं उन्हें बोल दूँ कि यार ये डिजाइन करना है मुझे ऐसा कुछ चाहिए, they will not be able to replicate that, because they don't really know Photoshop. So if you are just starting out, just first thing is just learn Photoshop. बी अ प्रो एट इट. अगर आपको कोई भी डिजाइन चक के दे दे, बोलो कि ये बनाओ, वी शुड बी एबल टू लाइक replicate that thing. So that is number one tip. Learn Photoshop. Second thing is design principles. Like a lot of people. So one thing that really helped me in my journey is I didn't start my journey as a thumbnail designer, but as a graphic designer. So I knew a lot of design principles. मुझे पता था क्या चीज किस तरीके से फोकस में होना चाहिए, क्या कलर्स यूज करने चाहिए, क्या मतलब कैसा हायरार्की वगैरह, those design principles and everything. I knew those things. So that has helped me to stand out in my thumbnail design niche. Why? Because a lot of designers are like यार ठीक है उन्हें आता है, but what they are normally doing is थोड़े बहुत इफेक्ट डाल दिए बस. It is not about that. You should learn about design principles कि okay हमें क्या चीज स्टैंड आउट करवानी है, क्या कलर्स यूज करने हैं, क्या कलर टोन्स होनी चाहिए, कहाँ पे फिल्टर्स आर रिक्वायर्ड, कहाँ पे नहीं, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस. So just learn about basic design principles जो हमारे यूज होते हैं, whether it is about contrast, balancing, hierarchy, ये सब चीजें. So learn about that. That is number two thing. Third thing is learn YouTube. If you are a thumbnail designer who just know कि यार ठीक है तुम्हें बोल दिया और तुम क्या जितने भी फेमस यूट्यूबर्स देखे उनका thumbnail कॉपी किया, that's it. No, it is not about this. You should learn YouTube thumbnail, sorry, YouTube mainly. देखो कि लोगों को क्या चीजें पसंद आती है. What are the things that people like mainly click on, right? So learn about that. Just study YouTube channels and see कि यार कौन सी चीज अभी चल रही है, कैसे कैसे तुम्हारे कॉम्पिटिटर में जितने भी कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल्स है, जस्ट सी किया उनके लिए क्या वर्क कर रहा है, उनकी ये वीडियो पर्टिकुलरली क्यों परफॉर्म की, या फिर क्या नॉर्मली साइकोलॉजी होती है, कौन से कलर ज्यादा अच्छे से स्टैंड आउट करते हैं. जस्ट लर्निंग अबाउट यूट्यूब, मेनली यूट्यूब, यूट्यूब पे क्या चीज कैसे चलता है, एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है,
क्या चीजें, क्या रिटेंशन पे इम्पैक्ट होता है, सीटीआर क्या होता है, इंप्रेशंस क्या होते हैं। आई थिंक यू शुड लर्न अबाउट दीज थिंग्स एज वेल, बिकॉज वो ओवरऑल आपको एक अच्छा थंबनेल डिजाइनर बनाता है। यू आर नॉट जस्ट डिजाइनिंग समथिंग, यू नो कि उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। you know thumbnail design is 30 or 20% about the design, 70 to 80% is about the concept thing, कि आप thumbnail पे डाल क्या रहे हो। and you have like a lot of examples जो कि thumbnail इतनी well design नहीं थी, but still they have performed really well because the concept was right. So just learn about concept building and psychology behind clicks. Okay, so that is number 3 thing. Fourth thing is, even if you're good at all these things, the basic thing is you should get clients, right? So just learn how to attract good clients. That can be via like just creating good content online. It can be just cold emailing smartly. So what does that mean? So if you are cold emailing someone, not just cold email ki yaar, theek hai, I want to work with you. No, just try to be like one step ahead. So if you are cold emailing someone, just try to replicate, just redesign their current thumbnail. कि okay, this thumbnail was not working for you. This video was not working. तो मैं तुम्हारी इस वीडियो का मैंने ये थंबनेल रीडिजाइन किया, एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, एंड इफ यू लाइक इट आई वुड लव टू वर्क ऑन अदर थंबनेल्स एज वेल, राइट? So if you are applying to a job post, just try to be again one step ahead, make their work easy. And in fact, this is how I got my job at like Soch as well. I was just trying to solve their problem, just make their work easy. So I just like there was this question ki yaar, okay, tell us what is the problem with our current thumbnails. So a lot of people must have just like एडिट सम पॉइंट्स या दो तीन ये पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिया होगा, बट आई मेड अ कंप्लीट पीपीटी आउट ऑफ इट कि यार ठीक है, आपकी ये 3 थंबनेल्स हैं, इनमें ये 5 पॉइंट्स हैं जो अच्छे नहीं है, एंड दिस इज हाउ यू कैन इंप्रूव। सो दैट लाइक हेल्प मी। मैं बहुत ज्यादा मतलब यू नो इफ देयर वर लेट्स से कि 1000 applicants, सबने एक ही चीज की है, एंड आई एम द वन हु इज डिजाइनिंग अ कंप्लीट पीपीटी आउट ऑफ इट एंड एक्सप्लेनिंग दैट क्लियरली, you know I am going to stand out there. Okay, and this is how I got my job as well. So just try to be very very smart. You should learn all these things, but आपने ये सब सीख लिया but you are not able to get good clients, and it is not going to help you, right? So learn how to attract good clients, learn how to be there on social media, and how to smartly put content out there. So yes. ओके। सो जैसे कि आपने बताया कि आपने जब जर्नी स्टार्ट करी थी तो आप ग्राफिक डिजाइनर के जैसा आपने स्टार्ट किया था, बट फिर आपने थंबनेल की तरफ स्विच किया। तो अभी आप सिर्फ थंबनेल ही डिजाइन करते हो या कुछ और भी कभी मन किया तो जैसे एक दो डिजाइन बना दिए, ऐसा कुछ है, या सिर्फ फोकस सारा थंबनेल पे ही है? हाँ, right now my focus is mainly in thumbnail designs only, because yeah, I mean it's a very big field यार, मतलब there is a lot to learn. So I अभी नहीं, but I think 6 to 7 months back I also used to design reel covers, but that was not very feasible. And you know what, जितना ज्यादा entry level easy होता है उतना ज्यादा there is a lot of competition. So like there are a lot of, so let's say I'm working on reel covers, anyone can do that, right? कोई इसमें इतना बड़ा rocket science नहीं है. But if it is about thumbnail design, I know it is very hard, and the entry मतलब you will get a lot of average designers, but जो best designers हैं they are very few. So I think that is kind of working for me. So thumbnail design is definitely like my priority right now, and I'm doing that only. But starting when I used to design infographics as well, social media posts as well, thumbnails, reel covers, and everything. But right now the focus is thumbnails only, because I know there is a lot to learn, and I know बहुत ज्यादा इसमें स्कोप है मेनली टू लर्न। ऐसा नहीं है कि स्कोप में ऐसा बोल रही यार यही करियर ऑप्शन है, बट to learn a lot of things, to learn about YouTube and all. So yeah, there is a lot to learn, and it is interesting for me as well. So right now, focus is just thumbnails. ओके। सो बेसिकली अभी आप काम अकेले ही करते हैं या आपकी कोई टीम या कोई सपोर्ट के लिए है? So right now it's just me, but I'm definitely planning to like expand the team and just hire some designers so that I can like work with more creators. But for now, it's just me working on these. ओके। सो फ्यूचर प्लानिंग में Hmm. आपने मतलब टीम कॉन्स्ट्रक्ट करने का ही सोचा है या कुछ था कि थंबनेल डिजाइनिंग एजेंसी पूरी खड़ी कर देते हैं, ऐसा कुछ? यार मतलब मैं इतना ज्यादा वो सोचती नहीं हूँ कि चीजों को कैसे चलाना है। I'm like कि धीरे धीरे वन एक एक स्टेप को लेके चलती हूँ। तो I'm not very sure about agency thing, because you know what I feel, मतलब of course like it is not अभी like I can change my mind in the next 3 4 days, ऐसा कुछ नहीं है। But I just feel कि यार एजेंसी में है ना, the client servicing is bit hard. You know, मतलब आप पर्सनल लेवल पे हर एक किसी क्लाइंट के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाते हो, वो रिटेंशन इज नॉट देयर, आप अच्छे से उनकी मतलब यू नो व्हेन वंस यू हैव अ गुड टीम, आप है ना अपने काम से डिटैच हो जाते हो। वो अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट गुड, स्पेसिफिकली फॉर मी, बिकॉज
आई रियली लव डिजाइनिंग थंबनेल्स। एंड अगर मेरे नीचे टीम काम कर रही है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सो आई डोंट रियली लाइक दिस आइडिया। मुझे अपना काम खुद करना पसंद है, एंड इट इज इवन वेरी हार्ड फॉर मी टू डेलीगेट माई वर्क, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ थंबनेल डिजाइन करने के लिए। सो आई थिंक दिस इज माई लाइक वीक पॉइंट राइट नाउ एज वेल। मैं किसी को हायर ही नहीं कर रही, बिकॉज आई एम जस्ट लविंग दिस प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग थंबनेल्स। बट या, in order to scale, in order to just focus on other things as well, because life is short yaar, मतलब you are not going to just work on one thing. So I do want to try new things and all, but abhi ke liye, like, I don't have a team, but not agency, but I would do, like, I would like to have at least one designer with me. तो कभी कभी मेरा मन नहीं हो रहा, और मे बी आई एम डिजाइनिंग समथिंग एल्स, या फिर मैं कुछ और नई चीज सीखने का ट्राई कर रही हूँ, सो दैट आई शुड हैव वन पर्सन जो कि मेरा वर्क कर दे। तो या, दैट इज डेफिनेटली अ प्लान। एजेंसी का आई एम नॉट वेरी श्योर अभी के लिए। ओके। और कुछ जैसे कोर्सेज वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ डिजाइन करने का सोचा है हम्म। कि थोड़े जो डिजाइनर बिगिनर्स हों वो सीख पाए आपके कोर्स से? Yeah, that definitely is a plan. I do want to like build one course as well as some live workshops as well. And yeah, that is a plan 100%, because I do think यार, अभी पता है ना, मतलब इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत सारे आपको ऐसे बोलने वाले मिल जाए कि आके वी आर अ थंबनेल डिजाइनर, बट स्किल्स नहीं है मेनली। पीपल डोंट रियली नो अबाउट डिजाइनिंग थंबनेल्स। उन्हें बस ये लगता है कि यार थोड़े बहुत फिल्टर ऐड कर दिए, ये सब कर दिया, ओके वी आर रेडी। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। थंबनेल डिजाइन यार इज वेरी हार्ड। लोगों ने अगर तुम्हें बोल दिया कि इट इज इजी, नो इट इज नॉट। आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है, तब आपको जाके एक थंबनेल बना पाते हो। एंड जैसा कि मैंने पहले बोला, इट इज नॉट जस्ट अबाउट डिजाइन, इट इज अबाउट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एज वेल, स्टोरी टेलिंग एज वेल, जो कि बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। सो फॉर दैट थिंग एज वेल यू रियली नीड गुड डिजाइनर्स। एंड फॉर मी, आई वुड लव टू टीच पीपल कि यार ठीक है, तुम ऐसे, ऐसा एग्जैक्ट प्रोसेस होता है, विच ऑन यूट्यूब इज लाइक बिट हार्ड। अब सब कुछ लाइक यू कांट समराइज इट रियली वेल ऑन यूट्यूब। सो डेफिनेटली दिस इज अ प्लान टू बिल्ड अ कोर्स एंड लाइक होस्ट सम लाइव वर्कशॉप्स एज वेल। ओ या। ओके। सो अगर आपके जैसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स के बारे में बात करें, एक्सक्लूडिंग जो स्टॉक, उसके लिए मैं अलग से पूछूंगा आपसे। तो इसके अलावा कौन कौन से, जो लैपटॉप वाला एक आपने बताया कि लैपटॉप जब लिया, ड्रीम लैपटॉप फिर लिया, या। फिर ऐसे कोई ऐसा इवेंट जो अगर नहीं हुआ होता तो शायद आंचल क्रिएट्स नहीं होती? Okay, that's a really nice question. So the number one event was when I was in my class 10th, and something happened in my personal life, and it was a very big decision which was not taken by me or my family, but someone else. Okay, and that taught me the power of money. Basically, like once you have money, you have a lot of power. You have the power to change like your life, and mainly to just take decisions. But at that time, we were not very independent. First thing, we were not in the power thing as well, and we were not having a lot of money as well. So I think that impacted, and unfortunately that decision was not in our hand. And that day I learned, and that day I decided, okay, I just do not want to repeat this thing again. I want to have the control of my life in my hand only, and just to earn a lot of money. So that day changed a lot of things. That thing was that laptop story that I told you, right? So जब मैंने वहां पे अप्लाई किया, ओके, आई जस्ट स्टार्टेड माई जर्नी एट दैट टाइम। एंड मैंने जैसे बताया कि वहां पे 200 एप्लीकेंट्स थे, एंड आउट ऑफ दोस 200 एप्लीकेंट्स आई वाज द ओनली वन जो वहां पे सेलेक्ट हुआ। दैट वाज अ वेरी लाइक, दैट चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक दैट बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस एज वेल कि यार ओके, मैंने अभी स्टार्ट किया है। एंड ऑफ कोर्स आई वाज अंडर कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम, but still I, out of 200 like applicants, I was the one who got selected. So that definitely means कि, okay, I know some things, right? So that gave me that confidence, and then I got my laptop, मैंने सीखा, and that confidence thing actually changed a lot of things. I started applying to like a lot of opportunities. ऐसा नहीं था यार ये मेरे को क्यों ही hire करेंगे। I actually wanted to try it out कि यार देखा जाएगा जो होगा, let me just try it. So that confidence came from that thing. Third is working at Soch. I think it completely changed my trajectory of career, yaar. Matlab, if I was just like growing like this, जैसे ही Soch happened, it was like this only. So yeah, Soch helped me a lot in learning about thumbnail design, in learning about YouTube. Because उससे पहले I used to call myself thumbnail designer, but I think वो real experience आया नहीं था. But once I started working at Soch, मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी। मैंने सीखा कि यार ठीक है, सिर्फ सिर्फ डिजाइन कुछ नहीं होता, यू नीड टू लर्न अबाउट यूट्यूब एज वेल। एंड डॉक्यूमेंट्री थंबनेल्स आर डेफिनेटली वेरी हार्ड। तो यू हैव दैट प्रेशर कि यार ठीक है, सही करना है, सही करना है, अच्छे से डिजाइन करना है, ये सब चीजें। तो आई लर्न अ लॉट
माई लाइक इन माई जर्नी एट सोच, जो कि अभी मैं बहुत ज्यादा सीखती हूँ. दैट इज वन थिंग. सेकंड थिंग इज आई स्टार्टेड अर्निंग अ लॉट आफ्टर दैट बिकॉज एक ब्रांड वाज देयर. ठीक है, सोच एक बहुत बड़ा ब्रांड था. एंड even the members at Soch team, okay, they used to refer me a lot of to a lot of good clients. So जैसे वो like they were also very famous, no, कि सबका I told you कि that description thing was there. दोनों ही बहुत सारे reach outs आते थे. They also used to work with good YouTubers. तो मेरे connections अच्छे built हुए through that team. एंड फिर टीम मेंबर्स ने मुझे और भी अच्छे यूट्यूबर्स के साथ रेफर किया. सो दैट हेल्प मी टू लाइक गेट गुड क्लाइंट्स एज वेल. एंड दैट बूस्टेड माय अर्निंग. And that is number two thing. Third thing is, yeah, ठीक है, I built a good brand out of that because as I was working with Soch, वो एक बहुत बड़ा नेम था अपने आप में. Soch by Mohawk Mangal, it's a brand. So when people started noticing me कि okay, I'm working with Soch, that trust was there कि okay, if she is working with Soch, she know her stuff. So yeah, these are the three events that definitely changed my life. And fourth is definitely Josh Talk, जो कि मैंने बता ही दिया. Like you told, you have like you have that question अभी आगे. But yeah, these are the top. ओके, सो बेसिकली मतलब जो सोच वाला पार्ट था वो आपका काफी इम्पैक्टफुल था, जिसकी वजह से करियर ग्रोथ काफी तेज हुआ आपका, राइट? Right. फिर जब आपने जो स्टॉक के साथ काम किया, तो आपका मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ ऐसा जो चीजें कि आप वहाँ के टीम मेंबर के साथ कैसे कंपैटिबिलिटी बना रहे थे, या कैसे मतलब एक होता है ना कि बहुत बड़ा मौका जो एकदम से आ जाता है, ऐसा कुछ, तो वो सब चीजें कैसी रही? Yeah. So first thing was again, मैंने like I didn't believe okay I'm working with Joe Stocks because definitely it's a very big brand. And it was the first company जहाँ पे मैं इतनी बड़े scale पे I was working, you know, मतलब इतनी बड़ी team है उनकी. And तो वो चीज थी. तो yeah, the experience was great यार. One thing is, talking about the compatibility with the team, you know, the best thing about Joe Stocks is कि there is no hierarchy. Okay, I was directly working with the head of Joe Stocks. कभी मैं किसी से बात कर रही हूँ, look, there was not कि यार ठीक है there are levels कि यार ये upper management ये lower man. No, it was not like that. Everyone was super friendly, man. Like I love the team environment. जो भी I even visited the Joe Stocks office. So it was cool. It was super cool. That's one thing. Second thing is about learning. So yeah, you know, I learned about the processes कि यार ठीक है इतने बड़े स्केल पे दे आर लाइक लिटरली अपलोडिंग वन वीडियो अ डे. इतने बड़े स्केल पे इतनी वीडियोस को मैनेज कैसे होता है. लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स देयर कि क्या प्रोसेसेस रहते हैं, कैसे कौन क्या मैनेज करता है, थंबनेल डिजाइंस कैसे वर्क करते हैं. देयर वाज दिस कांसेप्ट ऑफ री-इंडेक्सिंग थंबनेल्स दैट आई लर्नड. सो या देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग्स एंड बहुत कुछ सीखा मैंने. इट वाज अमेजिंग. एंड मेनली आई गॉट टू लाइक वर्क विद जोश टॉक्स. वो भी एक बहुत बड़ी बात थी. आई like I did watch a lot of their like Josh talks उस टाइम जब चलते थे जो talks वगैरह. एंड जब मैंने ऑफिस गई मैंने वो स्टेज देखा. सो या इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग वर्किंग विद दोस पीपल जिनको मैंने हमेशा ऐसे देखा है कि यार वेदर इट वाज सुप्रिया और यू नो मनीष पांडे और देव. सो इट वाज ग्रेट. ओके, सो बेसिकली आपने अप्लाई करा था या उनका खुद रीच आउट था ये? Okay, so I have actually recorded a video as well. So if you want to check that out, वो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया. But if अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊँ तो वो ये था कि again from Twitter only. So Supriya Paul, she is the founder of Jostox, right? So she posted this thing कि I want like we want a thumbnail designer for our company. तो वहाँ पे क्या हुआ, a friend of mine just tagged me there. तो वो चीज हुई बिकॉज यू नो दैट हेल्प्स अ लॉट. ऐसे करके दो तीन और भी मेरे फ्रेंड्स है, दे आल्सो टैग्ड मी देयर. तो मुझे वैसे अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला. एंड मैंने यू नो इट वाज अ फुल टाइम थंबनेल डिजाइनर. तो तो मेरे को ये पहली चीज तो ये यार फुल टाइम है तो मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं बिकॉज आई वाज एट कॉलेज ओनली. तो फुल टाइम तो देयर वाज नॉट एनी पॉसिबिलिटी. बट स्टिल आई थॉट ओके लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई. वो अंकुर वारिको एज अंकुर वारिको सेज इफ लाइक क्या था यार, इफ द आंसर इज नो, सॉरी सॉरी, क्या ना. हाँ, सो एज अंकुर वारिको सेज कि इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज नो. सो वही चीज थी. आई जस्ट डीएम्ड सुप्रिया बोल एंड आई वाज लाइक 100% श्योर व्हाई वुड शी रिप्लाई मी यार. उनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग्स है, इतने सारा डीएम्स उन्हें आते होंगे. बट स्टिल आई जस्ट गिव इट अ चांस एंड मैंने उन्हें मैसेज किया कि मैम आई वांट टू वर्क एज अ थंबनेल डिजाइनर बट आई एम स्टिल इन कॉलेज, कैन आई वर्क एज एन इंटर्न. तो फॉर्चुनेटली लकीली उन्होंने वो देख लिया. एंड शी रिप्लाइड कि हाय आंचल लाइक ऐसा उन्होंने लिखा. इतनी देर में क्या हुआ, मैंने क्या किया लाइक यू नो दिस थिंग इज वेरी हेल्पफुल. Just like if a lot of people are tagging you on a tweet, that means there is some credibility. So she noticed that a lot of my friends were tagging me there at you know
that tweet. So she noticed that thing. Okay, like a lot of people are like tagging Anchal Create. That means there is something in her. So she just checked the DM and उन्होंने बोला कि hello Anchal, I think we are looking for a full time designer only, but let me just ask the team. तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा हमें कुछ सैंपल्स बना के दिखाओ. I made those samples, they liked it, and yeah, so she liked my work a lot. So that is how I got my design internship there. ओके, तो फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस मतलब काफी अच्छा रहा कि यार चलो, जहाँ से मुझे एकदम उम्मीद नहीं थी वहां से एक कॉल आता है सामने से, फिर आप जॉब राइट करते हो। राइट, या वही चीज है यार, वही चीज है. मतलब जस्ट ट्राई टू जस्ट आस्क पीपल. ओके, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या हो जाए. एंड सो या दैट वर्क फॉर मी एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजें थी. एंड आई इवन लाइक द मेन थिंग वाज लर्निंग कि यार इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हाउ डू यू मैनेज थिंग्स, वो लर्निंग्स कैसे होती है, बिहाइंड द सीन्स क्या होते हैं. सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग टू लर्न. राइट। सो जैसे कि हर एक पर्सन की लाइफ में ये चीज हमेशा आती है, कभी या कभी ना कभी उन्हें ये फेस करना पड़ता है कि जो टिपिकल इंडियन माइंडसेट है ना, कि ये क्यों करना, ये क्यों कर रहे हो, एक लड़की हो आराम से, अगर बहुत ही अगर तुम्हें खुद इंडिपेंडेंट होना है तो जॉब कर लो। जो जो होता है ना, जो आपके पेरेंट्स नहीं, आपके आसपास का जो सोसाइटी होता है कि ठीक है मत करो यार, छोड़ दो, ये सब क्या है कैसे है। तो उस चीज को कैसे टैकल किया, मतलब सुना अनसुना कर दिया या कैसे? Mm-hmm. So, like I mentioned it earlier as well, like my mother has been very supportive. You know what, मतलब if मतलब अगर मेरी जर्नी को अगर मैं वैसे ही वैसा रखूं and she is not there, I don't even think कि मैं इस जगह पे होती. Like most of the credit goes to her only. She has supported me in every way, every single way. So जब मैंने start किया, I mean she was like, उन्होंने कभी मेरे को नहीं बोला कि यार अंजलि क्यों कर रहे हो, because she has that faith in me कि यार मतलब अच्छा ही होगा. That is one thing. Second thing is, I think एज आई वॉज स्टूडियस इन माई क्लास 12th, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे. तो बस पूरी फैमिली को या जितने भी सोसाइटी या कुछ मर्जी बोलो, दे हैड दैट ट्रस्ट किया ठीक है वो इंटेलिजेंट है, वो जो कर रही है सही होगा. दैट थिंग इज देयर. सो दैट हेल्प मी कि यार ठीक है इंटेलिजेंट है, सब कुछ अच्छा कर रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी गई है, इतने अच्छे कॉलेज में गई है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही कर रही होगी. सो बट स्टिल देर आर पीपल, देर इज जेलस एज वेल. वो सब तो होता ही है. एंड पीपल ऑफ कोर्स दे लाइक say all these things, but I think I know like where I want to go. I have that focus thing कि यार मुझे क्या करना है. So I kind of ignore them, and my mother has always been that shield कि यार कोई भी कुछ बोलता है like that is not going to come at me, वो संभाल लेंगे. So I have been very very fortunate about this thing कि like my mother is very supportive. तो वो कहीं ना कहीं रहा था. Like mostly it is about ignorance यार, just ignore them, like they are not adding any value. And as I'm from Rajasthan, वहाँ पे ऐसा बोलते भी है कि यार वो बड़ा हमारे घर पे राशन लेके जा रहे हैं जो तुम उनकी चिंता कर रहे हो. लाइक यू आर द वन, लाइक जो सब कुछ अर्न कर रहा है, यू आर द वन हु इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्निंग मनी, सपोर्टिंग योर फैमिली. तो उनका तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा यार, वो क्या बोले, वो तुम्हारे घर पे पैसे थोड़ी देके जा रहे हैं उन चीजों के लिए. तो क्या ही राइट। टेंशन लेना. तो या जस्ट इग्नोर दोस थिंग्स एंड जस्ट वर्क ऑन योर स्टफ. ओके। सो आंचल, यहाँ पे क्वेश्चंस तो मेरे सारे खत्म हो गए हैं, तो कोई एडवाइस करना ओके चाहते हो आप हमारी ऑडियंस को? ओके. वेट, लेट मी जस्ट थिंक अबाउट इट. यार एडवाइस ये रहेगी, मतलब अभी भी लाइक एट लाइक जब भी, सो आई हैव दिस रूटीन कि मैं शाम को हमेशा आई हैव दिस वॉक थिंग. और जब भी मैं वॉक पे जाती हूँ विद माय मदर, वी ऑलवेज थिंक यार कि हमने कहाँ पे स्टार्ट किया था. यू नो एंड दैट लाइक आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल कि मतलब जो जो चीजें हुई लाइफ में, आई हैव बीन लकी मल्टीपल टाइम्स. बट जब मैंने स्टार्ट किया था ना आफ्टर माई स्कूल, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी. मतलब अगर मेरे अभी एज आई टोल्ड यू कि मेरे स्कूल से इतने कॉन्टेक्ट नहीं है अभी, बट जितने भी फ्रेंड्स हैं मैं कभी कभी मतलब ऐसा फोन पे बात करते हैं लाइक आंचल यू चेंज्ड, राइट. तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, मुझे कुछ नहीं पता था. मुझे जो पोर्टफोलियो लोग बोलते थे, सीवी बोलते थे, रेज्यूमे बनाना, मतलब वो क्या होता है, राइट. तो दैट जर्नी फ्रॉम देयर टू हेयर, उसमें बहुत चीजें हुई. तो नाउ आई गेट दिस क्वेश्चन अ लॉट, चाहे वो मतलब नॉर्मल सोशल मीडिया पे डीएम्स पे आ जाता है कि आंचल हाउ शुड वी गेट स्टार्टेड, हम क्या चीजें करें, तो ये सब. सॉरी. तो थिंग इज, अगर मैं अपनी जर्नी से वो लर्निंग बताऊं ना कि यार कैसे आई वाज एबल टू रीच एट दिस पॉइंट, तो वो ये था यार कि नंबर वन दैट ईगरनेस टू लर्न. मतलब कभी तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें क्लियर पाथ मिलेगा कि यार तुम्हें यही करना है. यू विल हैव टू बिल्ड इट बाय योर ओन. ठीक है, तुम्हें खुद ही फिगर आउट करनी पड़ेगी चीजें. सो द थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इज जस्ट रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. ओके,
योर नेटवर्क शुड बी ग्रेट। तो नेटवर्क अगर वैसे भी नहीं है ना, so just try to reach out to people, just learn from them। या फिर not even reach out यार, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, there are a lot of people who are posting good content, so just learn from them, that is number 3 thing। और just learn from books यार, मतलब I started my journey, जब मैंने स्टार्ट किया था, I think that book changed my life यार, मतलब that is Rich Dad Poor Dad। okay, if you haven't read that book, please do। फर्स्ट हाफ जो है ना उसका, इट इज नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंस यार। उसकी जो पहले हाफ में जो स्टोरी उसने बताई है ना, कि उसने जब वो मिला, रिच डैड से मिला, ये सब चीजें हुई, दैट जर्नी मैन, लाइक इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो तुम्हें बहुत कुछ चीजें पता चलेगी जो मैंने वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थी अपने, तो मुझे पता था यार ठीक है, द यू शुड ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स, तुम्हें ये चीज नहीं करनी, तो दोज लेसन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, meet a lot of people, just network with good people, consume a good कंज्यूम गुड कंटेंट, सिर्फ रील्स और ये सब मत देखो। ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट यार, मतलब एंजॉय करो लाइफ, ऐसा कुछ नहीं है, बट लर्न, नई नई चीजें करो, हमेशा क्यूरियस रहो यार, एक्सप्लोर करो, रिस्क लो। इफ यू आर इन कॉलेज, तुमने अभी स्टार्ट की है, प्लीज टेक रिस्क, ज्यादा टेंशन मत लो, और वो अंडर कॉन्फिडेंट मत रहो कि यार ठीक है मैं क्यों ही करूँ रिप्लाई, वो मुझे, अब मैं मतलब वो मुझे हायर करेंगे या नहीं, मेरे अंदर ऐसा क्या है, मतलब जस्ट अप्लाई यार, कुछ नहीं होता। मैंने जब सोच में अप्लाई किया था, आई टोल्ड यू यार, मैं इतना बेस्ट डिजाइनर नहीं थी, बट स्टिल आई अप्लाइड एंड आई गॉट दैट चांस, और उसके बाद एवरीथिंग चेंज, राइट? सो यू आर जस्ट वन अपॉर्चुनिटी अवे फ्रॉम दैट चेंज। तो जस्ट ट्राई एंड एक्सप्लोर, जस्ट अप्लाई टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जितने भी मिलते हैं उन सबको यस बोलो स्टार्टिंग के अंदर, एंड यू विल लर्न अ लॉट। सेकंड थिंग इज जस्ट इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स यार, मतलब दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मुझे बहुत लेट समझ आया। जस्ट इम्प्रूव योर, एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर स्पोकन इंग्लिश, ऑफकोर्स यू शुड लर्न दैट, बिकॉज वो आपके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन करेगा, बट इट इज ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेटिंग थिंग्स वेल। तुम जो भी कर रहे हो उस चीज को अच्छे से समझाना। सो या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस यही चीजें है यार, इन द स्टार्ट तुम्हें बिल्कुल नहीं पता होगा कि यार ये चीज मैं कर भी पाऊंगी या नहीं, मतलब यू डोंट रियली नो, तुम्हें कभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, बट स्टिल यू शुड टेक दैट फर्स्ट स्टेप कि यार मुझे करना है, इफ आई वांट टू हैव समथिंग, लाइक वांट टू डू समथिंग बिग इन माय लाइफ, एंड ड्रीम बिग। बस यही चीज है यार। ओके, सो बेसिकली एक एक्सप्लोरिंग नेचर आपका होना चाहिए और बुक्स रीड करना या शुरू कर दो, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हम्म। राइट। सो आंचल, मैं चाहूंगा कि आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए भी अपील कर दो, क्योंकि आपकी बात ज्यादा मानेंगे, मेरी ऑडियंस है तो भी क्या। अरे डेफिनेटली यार, मतलब मतलब आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट स्पेसिफिकली बिकॉज, मतलब आई जस्ट चेक द अर्लियर पॉडकास्ट ऑफ लाइक उत्कर्ष, मैंने देखा क्या क्या वो क्वेश्चन पूछते हैं, कितने इंटरेस्टिंग थे वो। सो मतलब आई थिंक जो सबसे बड़ा, अगर मैं किसी को बोलूँ, अगर मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, मैंने बहुत सारे सुने भी हैं, बट द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आस्क सेपरेट्स यू फ्रॉम ऑल द अदर पीपल। सो उत्कर्ष क्वेश्चंस आर लाइक अमेजिंग, जिस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड जो भी अलग अलग इंटरेस्टिंग चीजें होती है, दैट इज ग्रेट। एंड yeah, I really love the questions that you asked with her. So definitely you should consider subscribing to Utkarsh, because the kind of questions he asks and जो research करते हैं, it is mind blowing, and yeah, definitely is a great communicator and a great podcaster as well। So subscribe to Utkarsh and his channel, and yeah। ओके, सो थैंक यू आंचल। सो आंचल का सोशल मीडिया हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप वहां पे रीच आउट कर सकते हो, और प्लीज पेशेंस रखना, जवाब मिलेगा, टाइम की थोड़ा सा शॉर्टेज हो जाता है कभी कभी। एंड बाकी इस वीडियो पे आपको जो भी अच्छा लगा हो, खराब लगा हो, कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। प्लस अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट stuck in past, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।